Hello students, how are you? My name is बीरबल शर्मा, लेक्चरर फिजिक्स PCCP रेजिडेंस कोटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ लाइट। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। When object is placed along the principal axis, then the size of image, ratio of the size of image and the size of object is known as longitudinal magnification. When object is placed along the principal axis, then the ratio of length of image and length of object is known as longitudinal magnification. For example, we know that 1 upon f is for mirror, that is 1 upon f is 1 upon v plus 1 upon u on differentiating with respect to t, time, then it is 0, f is constant, so 0 will be equals to d upon dt, v to the power minus 1 plus d upon dt, u to the power minus 1. अगर differentiate करूँगा, you know very well differentiation, you have to learn only formula, that is v to the power minus, कर सकता हूँ v to the power minus 1 divided by minus 2 dv upon dt plus u to the power minus 1 divided by minus 2 that is du by dt. ओके, ये कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv by dt दैट इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करूँगा इंटू du by dt कैंसिल कर दूँ, ऐसे लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू here dv length of image and du length of object. Okay, it is the most important formula. अब इसका न्यूमेरिकल लेंगे अभी। सबसे पहले 1-2 फॉर्मूलाज और देखिए। वेलोसिटी ऑफ image, velocity of image क्वेश्चन लेते हैं अभी इसका। velocity of image सबसे पहले लेते हैं along, नंबर 1 along principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। तो अभी मैंने किया था 1 upon f इक्वल्स टू 1 upon v प्लस 1 upon u ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, देन 0 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 upon v स्क्वायर इनटू dv by dt माइनस 1 upon u स्क्वायर du by dt। तो व्हाट इज dv by dt इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इनटू du by, अब याद रखिए हियर dv by dt इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ओके, एंड du by dt इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? वेलोसिटी में भी फाइंड कर सकता हूं, इट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी तो हो सकता है इट इज मूविंग वर्टिकल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए बी पार्ट में देखिए ए पार्ट बी पार्ट अलोंग या परपेंडिकुलर
to principal axis, you know very well that is HI upon HO is minus V upon U. V and U are constant because the object is moving perpendicular to principal axis. तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ HI will be equals to minus V upon U into HO. तो on differentiating with respect to T, तो it is dHI divided by dt minus V upon U dHO divided by, here dHI is the velocity of the image perpendicular to principal axis. Here dHI upon dt is the velocity of image perpendicular to principal axis, and dHO divided by dt velocity of object perpendicular to principal axis. ये यूज कर सकता हूं मैं. अब देखिए, अभी लेते हैं 2 क्वेश्चन लेंगे इसके बाद. सबसे पहले पावर ऑफ मिरर. व्हाट इज द पावर ऑफ मिरर? Okay, how we will define? The reciprocal of the focal length is known as power of mirror. The reciprocal of focal length is known as power of mirror. Okay, its unit is 1 upon meter और डायोप्टर. एक्चुअली ऐसे डिफाइन नहीं करते. दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं. देखिए, और ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग एट यूनिट हाइट. ओके, यूनिट हाइट्स बैंड्स by some angle, bands by some angle. Is it clear? Then this angle is known as power of mirror. For example, ये देखिए, ये कॉनकेव, ये पैरेलली फॉल हो रही थी ऐसे. तो ये तो कन्फर्म है कहाँ से पास होगी ये? फोकस पॉइंट से. दिस डिस्टेंस विल बी एफ, इट इज पोल. ओके, ये दिस हाइट इज, ये हाइट मान लूँ h इज टू 1, देन दिस एंगल इज नोन एज, ये डेल्टा, ये भी डेल्टा होगा. ओके, इफ h इज टू 1, देन पावर ऑफ मिरर क्या आएगा? देखिए, that is P is equals to delta, that is tan of delta, because delta is small. अगर small है तो लिख सकता हूँ. तो what is the P is equals to, यहाँ से निकालूँ, it is H upon F, H upon F, that is 1 upon F is negative, P is equals to 1 upon F. तो P is equals to minus 1 upon F in meter, और P is equals to minus 100 upon F in सेंटीमीटर. ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप. इट द पावर ऑफ मिरर. क्लियर? तो इन दिस वे वी कैन फाइंड व्हाट द पावर ऑफ प्लेन मिरर. दैट इज इनफाइनाइट. फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, सो पावर विल बी 0. एग्जाम्पल लगी पावर ऑफ मिरर, प्लेन मिरर. P is equals to minus 1 upon F, that will minus 1 upon infinity. That's how much? Diopter. The power of plane mirror. Okay? तो मैं कह सकता हूं that is power of concave mirror will be positive
and that of convex will be negative. चलिए अब लेते हैं रेज पैराक्सियल रेज पैराक्सियल रेज मीन्स होता है द रेज near to the principal axis falling at a small angle. The rays, okay, falling near to principal axis at a small angle, okay, are known as paraxial rays. नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फार अवे नहीं. मार्जिनल रेस ये क्या होती हैं? मार्जिनल रेस मतलब रेज फॉलिंग फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. रेस फार अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज मार्जिनल रेज. अब याद रखिए अगर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ जो फॉल हो रही है स्मॉल एंगल पर दे आर पैराक्सियल, और दूर फॉल हो रही हैं दे आर मार्जिनल, ज़्यादा दूर फॉल हो रही हैं. तो याद रखें ऑल द फॉर्मूलाज लेंस मिरर फॉर्मूलाज एंड सो ऑन मैग्निफिकेशन ऑल आर दे आर करेक्ट फॉर पैराक्सियल रेज. स्फेरिकल spherical aberration means if rays parallel falling to the principal axis falling on the mirror, suppose कीजिए it is convex concave mirror, then they will, अभी तक हमने पढ़ा, they will converge at a point that is principal axis, that is principal focus पर fall होती हैं. अगर वो rays paraxial हैं then they will focus at a point. अगर वो मार्जिनल है then they will not focus at a single point, they will fall at 7 points. तो the inability of lens of mirror, okay, of mirror to focus the rays, parallel rays at focus point is known as spherical aberration. एक्चुअली ऐसा होगा, देखिए ये रेज हैं, ये ऐसे मान लीजिए एट द मिरर पैरेलल रेज फॉल हो रही थी ऐसे, ओके, दीज आर द, तो दे विल फोकस, ऐसे फोकस होती है यहां तक, ये F1 F7 तक 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में व्हेन इट इज व्हाइट लाइट. तो देयर विल बी 7 फोकस, बीच बीच में यहां भी फोकस होंगे पॉइंट्स, ओके. दिस इनएबिलिटी टू फोकस एट ए सिंगल पॉइंट इट नोन एज द स्फेरिकल एबरेशन. हाउ वी कैन रिमूव इट? We can remove it, we will count only paraxial rays. It can be removed by using paraxial rays or by using parabolic mirror. पैराबोलिक मिरर इस टाइप से होता है, अगर रेज ऐसे आ रही होंगी तो ऐसे दे विल ऑल फोकस एट द, सारी की सारी एक ही पॉइंट पर फोकस होंगी, यहाँ पर द फोकस पॉइंट. ये यूज कर सकते हैं पैराबोलिक मिरर यूज करके. ओके, नाउ वन क्वेश्चन question is, okay, an object
of length 5 centimeter is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Okay, an object of length 5 centimeter is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that nearer end of object is at a distance 20 centimeter from pole of mirror. Find length of image and also find longitudinal magnification ओके सॉल्यूशन देखिए जरा इट द पोल हियर इज एफ हियर इज सी confirm it is 20 centimeter object is placed here it is 5 centimeter this point is A this point is B confirm इसका f गिवन है हाउ मच 10 सेंटीमीटर तो ये नेगेटिव होगा चलिए इट इज u1 इस एंड को मान लेता हूं इट इज u1 तो v1 कहीं इमेज बनेगा इट इज u2 ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ एंड A from pole is u1 that is minus 20 centimeter or we know very well f is equals to minus 10 centimeter it means it is placed at the C हो गया ये तो आपको मालूम है C पर ऑब्जेक्ट रखा है तो सेम साइज का C पर ही बनेगा क्लियर सो V विल बी इक्वल टू या तो इससे फाइंड कर लूँ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इट इज v1 तो v1 इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर ये आएगा डिस्टेंस यहीं पर बनेगा इसका इमेज ओके ऐसे बनेगा देखिए इमेज इट इज v1 और v1 में फाइंड कर चुका हूं 20 है नाउ द डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट डिस्टेंस ऑफ एंड v फ्रॉम पोल that is u2 is equals to minus 25 centimeter it is u2 5 centimeter this one और 20 तो है ही मेरा तो what is 1/f is equals to 1/v2 minus 1 plus 1 u2 it is 1/10 minus 1/v2 और minus 1/25 we can find easily 1/v2 इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 1/25 minus 1/10 LCM हुआ कितना 50 that is 2 minus 5 तो V2 इज इक्वल टू हो गया 50/3 सेंटीमीटर 50/3 मतलब 20 से कम ये हो गया V2 इज इट क्लियर और नॉट अब वर्चुअल इन्वर्टेड है याद रखना इन्वर्टेड इमेज है तो नेगेटिव आएगा U की वैल्यू ये है V की वैल्यू ये है क्लियर तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ चलिए यहां से देखिए लेंथ ऑफ इमेज तो मुझे चाहिए V2 और ये V1 इट इज V2 एंड V1 तो क्या करूं मैं लेंथ ऑफ इमेज अब याद रखना ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है इट इज टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पोल तो आएगा दैट इज हाउ मच 25 minus 50/3 that is 75
minus 50 by 3, that is how much? 25 by 3 centimeter. The length of image. Is it clear? How you will find the magnification? Magnification, longitudinal magnification. That is equal to height minus length of image upon length of object, that is 25 by 3 divided by length of image. 25 by 3 minus that is how much? 5. Length of image V2 minus V1, 25 by 3. It is clear? 25, 8 centimeter. Bigger banega na, bada hi banega. Okay. That is 25 by 3 whole divided by that is how much? 5. ये भी नेगेटिव और साइन में तो नेगेटिव आएगा ही. That is how much? Minus 5 by 3 magnification, longitudinal magnification 5 by 3 minus sign shows that image is inverted, okay, inverted and real and inverted. Okay, we can easily find this length or magnification. एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2. फोकल लेंथ of concave mirror is minus 5 centimeter. Okay, minus 5 या minus 50 centimeter कर ली, minus 50 centimeter. Find its power. So we know that what is power is minus 100 upon f in centimeter. So P will be equals to minus 100 upon 50. Is clear? 50 with a sign क्या आएगा? That is plus 2 diopter. Is it clear? At the power of mirror. अब लेते हैं टॉपिक, चेंज करते हैं हम. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द रेयर एंड डेंसर मीडियम. इससे पहले थोड़ा सा डिटेल शॉर्ट में, रेयर एंड डेंसर मीडियम. denser medium. Okay, a rare and denser medium of light are decided on the basis of speed of light, not the density. Okay, rare or denser medium are decided on the basis of optical density, not density. Optical density is actually a refractive index, not density. Optical density is closely related to speed of light in the medium, in that medium. अब higher is the speed of light, rarer will be the medium. जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना रेयर होता जाएगा. Higher is the speed of light, rarer will be the medium. Okay, and lesser
is the speed of light denser will be the medium. We know very well in comparison of glass and air, which one is denser? So glass is denser. It's not decided on the basis of density. The speed of light in the air is much more in comparison to the speed of light in glass. Speed of light rare means air में होती है 3 into 10⁸, जब glass में होती है 2 into 10⁸ meter per second. अब देखिए in kerosene and water, kerosene is denser than water because speed of light in kerosene is less than the speed of light in water. Okay, so these are the rare and denser medium. अब लिखते हैं definition of refraction of light. क्या when light falls at the interface of two media, okay, then it will deviate from its original path. This phenomenon is known as refraction of light. चलिए लिखते हैं. When light falls obliquely at interface of two media, जहाँ मिल रहे हो दो मीडियम, two media, okay, then the ray of light will deviate from its original path. This phenomena is known as refraction of light. ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है वाटर, तो कन्फर्म है वाटर इज डेंसर इन कंपेरिजन टू एयर. हियर इज एयर, हियर इज वाटर. देखिए लाइट ऐसे फॉल हो रही है, इट इज इंसिडेंट रे, तो कन्फर्म है इट विल बी द नॉर्मल. दिस एंगल इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, इट इज मूविंग, ऐसे बैंड होगी है टुवर्ड्स द नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बैंड हो जाएगी. ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट फॉल ऐसे हो रही है, डेंसर से मूव कर रही है, इट विल बी द नॉर्मल. एट दिस टाइम दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, it will bend away the normal, it is angle of refraction, the refracted ray, it is known as refracted. याद रखना, it is incident ray, here is incident ray. Okay, so when light moves from rare to denser, it will bend towards the normal. And it moves from denser to rare, it will move away, the deviate हो जाएगी. लेकिन याद रखना, when it fall normally then I is equals to 0, all will be equals to 0. क्लियर है ना? अगर ऐसे फॉल हो रही है नॉर्मली, then there will be I will be 0 and R will be 0. अगर ऐसे फॉल हो रही है नॉर्मली. इज इट क्लियर? चलिए अब लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ये इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ
of refraction. There are two laws of refraction. Number one, same as in light. ओके, जैसे लाइट में था सेम वैसे ही आएगा. नंबर, सबसे पहले फिगर बनाते हैं. देखिए, इट इज वाटर और एनी अदर मीडियम. इट इज सपोज वाटर, हियर इज एयर. ओके, चलिए, लाइट ऐसे मूव कर रही है, ऐसे फॉल होती है. इट इज नोन एज इंसिडेंट रे. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कुछ ऐसे बैंड होगी. इट इज नॉर्मल. इट इज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आर, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टेड ray. It is interface of two media. Okay, so first law, what is the first law? The incident ray, refracted ray and normal all lie in same plane. लाइट ऐसे फॉल हो रही है इंटरफेस पर, तो इसी फेस पर जाएगी, ये वाली भी एक ही प्लेन पे होगी. तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन. बिल्कुल उसी तरह जैसे रिफ्लेक्शन में था. ओके, सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है. सेकंड लॉ, और इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ. ओके, क्या है? द रेशियो ऑफ साइन आई, आई मीन्स इंसिडेंट एंगल, एंड साइन आर remains constant means sin I upon sin R, that is equals to constant. It is written as mu or n. अब लिखते कैसे हैं? इट इज लाइट जहां से जा रही है, एयर टू वाटर, एयर टू वाटर. इट इज रीड एज mu w, known as refractive index of water with respect to air. फर्स्ट वर्ड जो लिखा है वो शो करता है लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम, और सेकंड वर्ड करता है लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट मीडियम. म्यू और एन सेम थिंग, कैसे भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, अच्छा, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू ए इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. मीन्स ऐसे भी लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वी एयर अपॉन वी इन वाटर. आप जानते हैं वी इज एन लैम्डा, न्यू लैम्डा इन एयर डिवाइड बाई न्यू वाटर इन, न्यू तो सेम, लैम्डा इन वाटर. तो ये तो कैंसिल हो गया. न्यू डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो देखिए क्या फॉर्मूला बन गया मेरा. मेन जो आपको लर्न करना है क्या बना? साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन ऑफ आर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू ए, दैट इज वी इन एयर डिवाइड बाई वी इन वाटर, दैट इज इक्वल्स टू, लिख सकता हूं लैम्डा इन एयर डिवाइड बाई लैम्डा इन वाटर, लिख सकता हूं ऐसा. इज इट क्लियर? ये लर्न करना है आपको. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर? अब देखो नोट में देखो जरा, ऐसा भी कर सकता हूं म्यू
डब्लू, ए डब्लू कर दूँ ना मैं इसको, तो क्या आएगा, ए डब्लू तो था ही, वी ए वाई वी डब्लू, और अगर इसको ऐसा कर दूँ ए डब्लू तो क्या होगा, वी डब्लू वाई वी ए। अब मल्टीप्लाई करके देखो, ए म्यू डब्लू ए इंटू म्यू ए डब्लू दैट इज इक्वल्स टू 1, मीन्स म्यू डब्लू ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ए डब्लू। ये शो कर रहा है लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर मूविंग टू वाटर, ये शो कर रहा है लाइट इज कमिंग फ्रॉम वाटर मूविंग टू एयर। It's the refractive index of water with respect to air, the refractive index of air with respect to water। अब देखिए absolute RI, what is absolute? Refractive index means refractive index of any medium with respect to air or vacuum is known as absolute RI. Refractive index of any medium with respect to air or vacuum is known as absolute RI. RI means refractive index. For example, absolute RI of water, ऐसे लिखूंगा, म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर सिंपली म्यू डब्ल्यू, पहले कुछ नहीं लिखा है, वैक्यूम या एयर है, इट जाएगा वी इन एयर डिवाइड बाई वी इन वाटर। इज इट क्लियर? फर्स्ट मीडियम फिक्स कर दिया मैंने कि लाइट मस्ट कम फ्रॉम एयर और वैक्यूम। इज क्लियर? अब लेता हूं मैं रिलेटिव RI, रिलेटिव RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव RI। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium with respect to other medium other than air or vacuum, vacuum व air के अलावा, other than air और vacuum, इसके अलावा कोई और मीडियम हो, ओके, is known as relative RI. For example, refractive index of glass with respect to water, तो means mu of glass with respect to water that is equal to V of water divided by V in water V upon glass. ओके, आप थोड़ा सा और देखिए जरा, मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, म्यू ऑफ जी वी डब्ल्यू वाई वी जी इंटू वी ए वाई वी जी कर सकता हूं ऐसा। मैंने वी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, वी से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन रहा है, देखिए जरा क्या बनाई, वी ए वाई वी जी, इसको और इसको अलग ले लिया मैंने, और इसको लिख सकता हूँ वी डब्ल्यू वाई वी ए। व्हाट इज दिस? वी ए वाई वी जी इट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और ये हो गया, क्या हुआ जरा बताओ, इट द 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, एब्सोल्यूट। फिर से देखिए म्यू जी डब्ल्यू इसको हो गया, क्या हुआ, म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू, पहले कुछ नहीं लिखा है, इट इज रिलेटिव, इट इज एब्सोल्यूट RI ऑफ ग्लास, इट इज एब्सोल्यूट RI ऑफ वाटर। अब आपको जितने न्यूमेरिकल करने हैं उसके लिए एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए आप, देखिए ऐसे लिख सकता हूँ साइन I अपॉन साइन R,
आई अपॉन साइन ऑफ आर लिया मैंने, तो आया मैंने ये लेता हूँ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, क्या आएगा V इन वाटर डिवाइड बाई V इन ग्लास इसको तो कितना था लैम्डा इन वाटर अपॉन लैम्डा इन ग्लास। कर सकता हूं, इसको तो हो गया ये वाला देखिए म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर स्पीड के टर्म में लिखना है तो W ऊपर होगा G नीचे, अगर एब्सोल्यूट RI के टर्म में लिखना है तो G ऊपर होगा और ये नीचे होगा। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर न्यूमेरिकल। ओके, चलिए नोट में लिख देता हूं, ये नोट फर्स्ट। सेकंड और देखिए जरा, ये कभी यूज करना हो तो देखिए कर सकता हूं मैं ये। डू यू नो लाइट इज मूविंग इन दिस वे, है ना। हियर इज, चलिए वाटर, हियर इज ग्लास, ऐसे है ये वाटर है और ये ग्लास। लाइट ऐसे मूव कर रही थी और इधर बैंड कर गई, इट इज आई, इट इज आर। ये वाटर तो लिख सकता हूँ म्यू ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ ग्लास, ये एंगल आई, ये एंगल आर लिख सकता हूं मैं। वैसे देखिए आपने लिखा होगा साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ फॉर न्यूमेरिकल लिख रहा हूं मैं, फॉर न्यूमेरिकल साइन आई अपॉन साइन आर इज टू म्यू। लाइट कहां से आ रही है? वाटर से, जा कहां रही है? ग्लास में। ऐसे लिखना चाहिए मुझे। दूसरा मेथड बताता हूं आपको, सोच के देखिए जरा क्या है। ऐसे करता हूं केवल आई साइन आई इंटू म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इज टू म्यू जी इंटू साइन ऑफ आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये साइन आई इंटू म्यू डब्ल्यू साइन आर इंटू दिस वन। ओके, ये मैं यूज कर सकता हूं ऐसा। अगर इस तरह लगाएंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करके देख लो, अब यही आएगा, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। कितना आया? साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। साइन आई इंटू म्यू, वाटर से आ रही है ये और ग्लास में जा रही है, क्लियर है ना। देखिए साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी, और यही था। देखो जरा, अगर ऐसे यूज करेंगे आप तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वाला इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब तो जानते होंगे आप किस टाइप की होती है, बताता हूं आपको। ग्लास स्लैब किस टाइप की होती है? हैविंग पैरेलल फेसेस। ओके, ओके, इट इज नोन एज थिकनेस। लाइट यहां से पड़ती है, ऐसे बैंड होगी, इधर निकलेगी ये ग्लास स्लैब। अब इसको ऐसे शो नहीं करेंगे, इट इज ग्लास स्लैब। एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग पैरेलल फेसेस नोन एज स्लैब, ट्रांसपेरेंट। तो अब यहां अलग से बनाते हैं। देखिए ये है मेरी ग्लास स्लैब, ओके, ए बी सी और डी, ग्लास स्लैब। इसकी थिकनेस है हाउ मच? टी। लाइट यहां से फॉल हो रही है ऐसे, ओके, लाइट इज फॉलिंग इन दिस वे। अगर स्लैब नहीं है तो क्या होगा? इट विल मूव ऑन दिस पाथ,
इट इज इंसिडेंट रे, इट इज क्लियर। चलिए नॉर्मल यहां बनाता हूं मैं, इट इज द नॉर्मल। ओके, इट इज P पॉइंट, इट इज O पॉइंट। अब यहां से इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास, ऐसे बैंड होगी। ओके, ये O, इट इज O डैश। यहां नॉर्मल फिर ड्रॉ कर सकता हूं मैं इस सरफेस पर। देखिए ये नॉर्मल मैंने ऐसे ड्रॉ किया। फ्रॉम ये जो है इट इज O डैश। अब दिस लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू, इट इज एयर, हियर इज ग्लास। ओके, तो इज इंसिडेंट रे, इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो इट विल बेंड या इट विल मूव अवे, ऐसे हो जाएगी ये। इट इज नोन एज इमर्जेंट रे। इट इज नोन एज, ये एंगल आई, ये क्या होगा आर, ये एंगल भी आर होगा बिकॉज दीज टू आर पैरेलल। ये एंगल मान लेता हूं ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्लियर, दीज आर द नॉर्मल्स। ये नॉर्मल है डीसी पर, ये एन, ये एन डैश। इज इट क्लियर और नॉट? जब ए सी बी पर पड़ रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड ओ डैश। ओ डैश इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, इट इज रिफ्रैक्टेड रे। तो देखिए एट इंटरफेस, एट सरफेस ए बी पर देखता हूं बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, क्या लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू म्यू। आ रही है एयर से, जा रही है ग्लास में, नंबर 1 एट सरफेस डीसी बाई स्नेल्स लॉ अगेन। अब लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, तो इसको मांगो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, तो साइन आई, साइन ई, साइन आर अपॉन साइन ऑफ ई, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर नंबर 2। चलो इसको ए लिखता हूं, इसको लिखता हूं बी, दीज टू। अब इसके बहुत सारे पॉइंट्स लेते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए जरा क्या आएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट देखिए जरा, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, इन दो इक्वेशन से लीजिए, ले सकता हूं इन दोनों को म्यू। अच्छा इसको और भी लिख सकता हूं कुछ आगे, इन टर्म्स ऑफ स्पीड लिख सकता हूं मैं। देखिए इट इज वी ए वाई वी जी नंबर 1, इट इज या ए, इट इज वी जी वाई वी ए, ये नंबर बी। अब लिख लीजिए फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम ए एंड बी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, म्यू जी ए इंटू म्यू ए जी, दैट इक्वल्स टू वी ए वाई वी जी इंटू वी जी वाई वी ए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो म्यू ए जी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ए एंड जी। अगर रिवर्स करूंगा तो ये 1 अपॉन, इट बिकम्स 1 अपॉन। ओके, चलिए वी पॉइंट लेते हैं, फ्रॉम ए एंड बी, या चलिए ए से ही ले लीजिए, फ्रॉम ए म्यू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ओके, इज गोस टू वी ए बाई वी जी। You know very well speed of light in the air is more in compared to speed of light in 1, because Vg is greater than Va. Va is greater than Vg. It means sin I is greater than sin of R, means I is greater than R.
or angle R is less than I, means when light moves from rare to denser medium, then angle छोटा होगा refractive index, it will bend towards the normal. Means when light moves from rare medium to denser medium, आप देखिए सरफेस ए बी पर देखिए जरा, ये रेयर है ये डेंसर है, देन इट विल बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी इधर। मैं इससे ही प्रूव कर सकता था, अगर डेंसर से रेयर में जा रहे इट विल मूव अवे। ये बी पॉइंट। अब सी देखिए जरा, सी पॉइंट पे देखिए जरा, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से देखिए जरा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इनटू साइन ऑफ आर डिवाइड बाई साइन ऑफ ई इज टू वी ए वाई वी जी इंटू वी जी वाई वी ए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये भी कैंसिल, मीन्स साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ ई इज टू 1, मीन्स साइन ऑफ आई इज टू साइन ऑफ ई, और एंगल आई इज टू एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस आर पैरेलल। मैं कह सकता हूं फर्स्ट और लास्ट मीडियम इज सेम इफ, रिजल्ट ये निकला, इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम इज सेम, देन ये इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे दे विल बी पैरेलल, देन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे will be parallel. Is it clear? ये पैरेलल होंगी। आगे देखिए जरा, इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। देखिए एक एग्जांपल और देते हैं, एग्जांपल देखिए, चलिए ये है वाटर, क्या है ये? वाटर। ये है ग्लास, ओके। ये कोई और मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3, हियर इज एयर, और ये भी क्या है? एयर। ऐसे लाइट आ रही थी, सीधी जाएगी, इंसिडेंट, ओके। अच्छा, अब ये बैंड होगी, ऐसे होगी, ओके। फिर मान लीजिए कैसे भी जा रही है, ऐसे होगी, फाइनली देयर बिकम्स ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, दे विल बी पैरेलल। ये और ये दोनों पैरेलल होंगी। इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम इज सेम, बीच में कितने ही मीडियम है? मीडियम मस्ट बी पैरेलल, हैविंग पैरेलल फेसेस। इसे बोलते हैं ग्लास स्लैब, मीन्स कंपाउंड स्लैब। इट इज कंपाउंड स्लैब, ओके। चलिए अगला देखिए, एक और पॉइंट, डी पॉइंट। डी पॉइंट में है, डी पॉइंट और भी, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये डिस्टेंस, चलिए ये पॉइंट कुछ भी लिख लेते हैं, एम, देन दिस डिस्टेंस इज डी, नोट लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल शिफ्ट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डी पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे is known as lateral displacement. That's D. It depends on, D is directly proportional to thickness of the slab. Okay, D is directly proportional to, that is I, angle of incidence. D is directly proportional to mu, or we can say on increasing mu D will also increase. D also depends on wavelength of light, that's lambda. अभी कैसे डिपेंड करेगा मैं देखता हूं अभी ऑफ फॉर्मूला। देखिए फिगर देखिए जरा, थिंक अबाउट दिस एंगल विल बी हाउ मच 9, दैट इज दिस एंगल इज आई, दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई, इट विल बी आई माइनस आर, ये एंगल होगा आई माइनस आर, ये वाला एंगल, और ये तो 90 है ही मेरा। तो देखिए इन ट्राइंगल ओ एम O dash, O M O dash, it is I minus R, it is perpendicular, it is hypotenuse. Okay, so what is sign of I minus R? I minus R, that will be equals to D upon O dash. So what is the value of D? O dash into sign of I minus R, number 1. Is it clear? We have to find the value of O dash. तो इस ट्राइंगल में देखिए जरा, ए वाला ट्राइंगल, इट दिस पॉइंट इज एन, दिस 90, तो इन ट्राइंगल ओ एन ओ डैश, इट इज आर, व्हाट इज द कॉस ऑफ आर? कॉस ऑफ आर इक्वल टू बेस, दैट इज ओ एन डिवाइडेड बाई ओ डैश, या व्हाट इज ओ डैश? ओ एन डिवाइडेड बाई cos of r, but O(n) is t, that is t upon cos of r. अब यहाँ से पुट कर सकता हूँ वैल्यू ऑफ d, what is the value of d is equals to t into sin of I minus r divided by cos of r, लिख सकता हूँ ऐसा। अब you know very well if theta is small then sin theta will be only theta. देखिए if theta is small then sin theta will be theta and cos theta is 1. ये मैं आपको पहले प्रूव करा चुका हूं। अब भी आगे देखिए, it is if I and R are small, then we can write here d will be equals to t into I minus r divided by cos r is 1. Take common I, d will be equals to t into I into 1 minus r upon I. Because we know that sin I upon sin r is equals to mu, or I upon r and small, that is equal to mu, or r upon I is equals to 1 upon mu. So we can write here d will be equals to t I 1 minus 1 upon mu, the important formula, d is equals to t I into 1 minus 1 upon mu. From it is clear, देखिए from figure d is directly proportional to t, increase the thickness of the slab then d will increase. D is directly proportional to I, angle I. If we increase the angle of incidence, then d will increase. अब think about third point. On increasing mu को increase करूँगा, then this negative factor will decrease. So this bracket will increase, d will increase.
or you know very well, that is higher is the mu, higher is the mu, lesser will be the wavelength. Okay, higher is mu, lesser wavelength, that is lambda. So on lambda increasing, d will decrease. These are the main points for lateral displacement. Okay.